Hi everyone, welcome back to Super Kalam. Today we are starting with complete medieval history through timeline for your upcoming examination. Even if you're preparing for prelims 2025, then also this class is going to be really important because we are summarizing entire medieval history in just one video. So I am saving your time and your efforts as well when it comes to history. We have already completed ancient history in one video in one timeline. The link to that video is given in the I button at the top, also in the comment section, in the description box. But today, the lesson that we are going to start with is really important. Medieval history is very vast. Why? Because ancient history mein things started, medieval history mein things expanded. What expansion could we see in medieval history? We can see the expansion of empires, territories, kings, queens, administration, architecture, culture, polity, socio-economic condition. All of this we are going to study through a very wonderful mind map and timeline. I am expecting that all of you must be having your medieval history registers as well, so that you can take running notes in the class. And also, in the class, I'll tell you where and when to practice questions so that you can solidify what you are studying and revising today. I have created MCQ based homework for all of you on every topic that we are going to cover today. And the link of all those questions is given in the description box of this video. Your only simple task would be to cover each and every topic, pause the video, practice MCQs, then move ahead. After covering each and every topic, you will have to solve questions so that your preparation becomes much more aligned with your revision. Let's get started. Shuru karte hain. Now, this is a beautiful mind map that I have prepared for all of you, and this mind map is going to help you cover and revise the entire medieval history. Starting with a very interesting previous year question that I wanted you to have a look at. Now, here this question is directly about which empire? About the Delhi Sultanate period, which we are going to study today. The question says, in the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection was known as Amil. Now, I want all of you to focus on the type of questions they are asking. आमिल के बारे में पूछा है. That means the officer, the administration, they are focusing on the administration part of the Sultanate period. Okay. Second statement is saying the Ikta system of sultans of Delhi was an ancient indigenous institution. Again, they are focusing on administration. Third statement is saying the office of Mir Bakshi came into existence during the reign of Khalji sultans. So again, they are hinting towards administration. So each and every empire that we will study, we have to focus on administration because this is the key. You guys also are preparing for administrative examinations, right? तो इसीलिए एक्सपेक्ट करना कि कोई भी किंगडम आपको पढ़ाया जाए या कोई भी किंगडम एम्पायर आप पढ़ो तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान जरूर देना. ठीक है. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. फटाफट से इसका आंसर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग दी PYQs एज वेल. देखूं तो कितने बच्चे हमें हमारे यहाँ पर क्लास में PYQs भी प्रैक्टिस करते हैं. Yes, so the correct answer here is very good. It is A, one only. Only first statement is correct. देखो जब हम आमिल्स की बात करते हैं ना, what who is an आमिल, तो आमिल क्या है ये समझते हैं. आमिल वर ऑफिसर्स हु वर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर्स. जैसे IRS समझ लो. ठीक है, तो हम एक तरीके से इंटरलिंकेज भी कर रहे हैं. सो दीज वर ऑफिसर्स हु यूज टू कलेक्ट द रेवेन्यूज एंड दे यूज टू बेसिकली अकबर ऑल्सो हैड आमिल्स. अगर आप मुगल एम्पायर में भी देखोगे उसमें भी आमिल्स प्रेजेंट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. बट वेन वी टॉक अबाउट द टर्म मिर बख्शी, वॉट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ मिर बख्शी? This office did not come into existence during the Delhi Sultans. खलजी सल्तनत के टाइम पे नहीं आया. It was in existence during the Mughal Emperor Akbar's time period. ठीक है, तो मुगल एम्परर अकबर के टाइम पीरियड में ये ऑफिस निकल कर आया था. तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. C एंड D को हम हटा देते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब बात आती है इक्ता सिस्टम के बारे में. तो इक्ता सिस्टम में क्या हुआ कि पूरी जो जमीन हुआ करती थी, द एंटायर लैंड of the empire was divided into small patches.
स्मॉल पार्ट्स, ओके। स्मॉल पैचेस मतलब कि यहाँ पर एक पैच को इक्ता बोला करते थे, वन पैच वॉज नोन एज इक्ता। एंड हर इक्ता पे एक सोल्जर होता था जो उसकी रक्षा करता था, जो उसके रेवेन्यू की रक्षा करता था, ठीक है, जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिल्ली सुल्तान्स, ओके, ये पॉइंट क्लियर है। बट इट वॉज नॉट एन एंशंट, यहाँ पर वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, एंशंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन, नो, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुल्तान्स। इसको इंट्रोडक्शन, इसका इस्टेब्लिशमेंट इसका किसने किया, introduced by Delhi Sultans. So it was not an ancient office. So third statement is also, second statement is also wrong. B हट गया, तो हमारे पास बचा ऑप्शन ए। सो स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जब भी हम एक एक पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन पे पढ़ेंगे अभी क्लास में, प्लीज ध्यान देना कि कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज इंट्रोड्यूस हुए हैं और कौन से एग्जिस्टिंग ऑफिसेज थे, ठीक है। शुरू करें इसी नोट पे। सो आफ्टर दिस क्लास, one more task I have added to your list, which is practicing previous year questions on medieval history. I have given you the link to practice PYQs directly. You don't have to research and go here and there for finding the answer and questions on PYQs. Simply the link, super kalam पर ही जाना है। अगर लिंक नहीं भी दिया हो ना, तो देखो यहाँ पर, you just have to go to superkalam.com पे जाओ और फिर वहां पर डैशबोर्ड में जाओ। टॉप पे आपको डैशबोर्ड दिखेगा। वंस यू गो टू द डैशबोर्ड, ओवर हियर ये जो आपको चेक मार्क दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन दिस चेक मार्क, आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे और आप यहाँ देखोगे कि वी हैव ऑल दी PYQs लिस्टेड डाउन ओवर हियर। सारे PYQs ना यहीं पर ही लिस्ट डाउन है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ, ये देखो, ऑल दी PYQs, सब्जेक्ट वाइज PYQs आर लिस्टेड डाउन ओवर हियर। ये देखो 2023 का, 22 का, 21 का, 20 का, 19 का, सारे PYQs लिस्टेड हैं। और डायरेक्टली आप जाओ सुपर कलाम पर और पूछ लो कि भाई गिव मी PYQs ऑन मिडिवल हिस्ट्री। डायरेक्ट पूछो और डायरेक्ट ऑन द स्पॉट सॉल्व करो एंड आगे बढ़ो। और यहाँ पर आप प्रोग्रेस बार में अपनी प्रोग्रेस भी देख सकते हो आफ्टर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, है ना। सो दिस बिकम्स ईजी, आपकी एक्यूरेसी, परसेंटेज, मार्क्स सब आपको यहाँ प्रोग्रेस बार में देखने को मिलता है, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत पीरियड से। और नॉट जस्ट दिल्ली सल्तनत, पहले मैं आपको बैकग्राउंड देती हूँ, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री का। दिस इज गोइंग टू बी अ रियली एनरिचिंग क्लास। मेक श्योर कि आप मेरे साथ नोट्स बनाते जा रहे हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 6th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी। ये टाइम पीरियड है आपका मिडिवल हिस्ट्री का, ठीक है। और अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले आप देखोगे 700 CE से जब ये स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखोगे फर्स्ट इन्वेजन वाज डन ऑफ सिंध। सिंध का इन्वेजन हुआ था सबसे पहले। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था इन्वेजन पहला, हु वाज एन अरब, ओके। मोहम्मद बिन कासिम, एन अरब, इन्वेडेड सिंध। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में हमने कहाँ पर एंड किया था? गुप्ता पीरियड पर हमने एंड किया था क्लास। But post Gupta period, you will see that the entire empire starts getting fragmented into different parts. छोटे छोटे हिंदू किंगडम्स, रीजनल किंगडम्स बनने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज द लेटर गुप्ताज ना, दे वर नॉट वेरी एफिशिएंट रूलर्स। दैट इज वाई द एंटायर एम्पायर स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू डिफरेंट रीजनल किंगडम्स एंड दैट वॉज टेकन एडवांटेज ऑफ। जब हमारे हिंदू किंगडम्स डिवाइड होने शुरू हुए, उसका एडवांटेज इन्वेडर्स ने उठाना शुरू किया। इसीलिए बोला जाता है यूनाइटेड रहो। व्हेन यू आर यूनाइटेड, नोबडी कैन ब्रेक यू। व्हेन यू आर योरसेल्फ फ्रेगमेंटेड, you are not united, then anyone can take advantage. So similarly here you will see that northwestern side of India पे Muslim influence देखने को मिला। Many battles took place from 700 to 810 AD, and here the caliphate, the Arab empires, they started entering into India. When they started entering into India, they started grabbing hold of the northern side of India, northern subcontinent of India, and they started creating their own empires. अब जहां पर जो उन्होंने अपने एम्पायर्स खड़े करने शुरू किए, many Arabs, many Turks were even slaves in their own nation, but they entered India and grabbed the opportunity because India did not have any central ruler, and they started establishing themselves as sultans. And hence we see the rise of Delhi Sultanate period. Delhi Sultanate period is also known as the Mamluk Empire. Mamluk means, Mamluk का मतलब होता है slave, slave dynasty. Why? Because the ruler who established the Delhi Sultanate period in India, na, he was a slave in his own nation. It was established by Qutbuddin Aibak.
है ना। तो वो यहाँ पर कोई राजा नहीं था, तो यहाँ के जब वो राजा बने तो उन्होंने अपने आप को सुल्तान बना लिया। रियलिटी में वो स्लेव्स थे, इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। Now, Arabs who were initially existing in India, they were invading India, they were defeated. हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में किंग थे जिनका नाम था नागा भट्टा। गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी के थे, राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, सब राजपूत किंग्स भी थे। बाद में वो दे स्टार्टेड गेटिंग फ्रेगमेंटेड बिकॉज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड. So Arabs were initially defeated. When Arabs were defeated, this opportunity was taken advantage of by Qutbuddin Aibak. Okay, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड की, यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है। कैसे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली सल्तनत पीरियड, इस्लाम अराइव्ड इन नॉर्थ इंडिया, ये बात हमको पता है ना। व्हेन इस्लाम अराइव्ड इन नॉर्थ इंडिया, वी सी दैट मुइजुद्दीन, जिसको मोहम्मद ऑफ गुर भी बोलते हैं, ही वाज सक्सीडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ टर्किश स्लेव. ठीक है, ये कौन थे? टर्किश स्लेव थे. अब 1206 में उन्होंने अपने आप को किया यहाँ पर स्टैब्लिश, एंड ही वन द बैटल ऑफ टरेन. उन्होंने क्या किया? बैटल ऑफ टरेन को जीता. बैटल ऑफ टरेन कब हुआ था? 192 एडी में. व्हेन ही वन द बैटल ऑफ टरेन, ही established his empire over here. अब सेम टाइम पीरियड में there was another slave who entered India. That slave was known as Yalduz. This is a very famous name. He succeeded Ghazni. Yalduz came to India and started claiming Delhi. Delhi सबके एडमिनिस्ट्रेशन का हब था. So he started claiming Delhi. And what happened? This claim was not accepted by Qutbuddin Aibak. He was ruling from Lahore. ये लाहौर में थे, but ये दिल्ली को हड़पना चाहते थे. Because Yalduz was, grabbing Delhi. That is why he was not happy. He said, I am not going to let him grab Delhi. So he established slave dynasty, also known as Mamluk dynasty. It was also the first Muslim dynasty to rule over the Delhi Sultanate in India. And he defeated Yalduz to capture Delhi. Now, do you know that this Qutbuddin Aibak was also known as Luck Baksh, because it is said when he used to get happy, he used to reward the person with lakhs of rupees, lakhs of coins, etc. तो इनको लख बख्श भी बोला जाता है. So when we talk about the Qutbuddin Aibak, when he defeated Yaldu, established his empire in Delhi, won the battle of Tarain, he was also known as Lak Baksh. अब इनके बाद क्या होता है? इनके बाद आता है टाइम पीरियड 1210 से लेकर 36 का, वेयर इन 1210 में ऐबक डाइज प्लेइंग चौगन. चौगन इज हॉर्स पोलो, घोड़े पे बैठ के जो पोलो खेलते हैं ना. सो इट इज सेड दैट he fell down the horse and he was injured very badly and he finally ultimately succumbed to his death. Now he was succeeded by Iltutmish, who was his son-in-law. Now Iltutmish is considered as the real consolidator of the Turkish conquest. Why? Because एक तो इल्तुतमिश की पॉलिसीज बहुत ब्रॉड माइंडेड हुआ करती थी. He was considered as the most broad-minded king of his time. And at the time of his accession, there was a person known as Ali Mardan Khan. ये अली मर्दान खान कौन थे? इन्होंने अपने आप को बंगाल और बिहार का राजा बना लिया था. During the same time period, he was challenging Iltutmish. He declared himself as the king of Bengal and Bihar. And at first, the fellow officers of Iltutmish, they were afraid. They were saying कि भाई Ali Mardan Khan can, expand his influence, etc. But Iltutmish was very broad-minded person. He said, I will have to expand my control over territories. Once I have more territories under my control, I can easily defeat not just Ali Mardan Khan, but all the other people like Ali Mardan Khan who wants to become the Sultan. So what he did, he recovered Gwalior, Bayana, Ajmer, Nagaur. He also occupied Lahore. He started expanding his territorial boundaries to defeat all these small, officers who were trying to declare themselves as kings. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है. अब इसी टाइम पीरियड में जब ये अली मर्दान खान और बाकी के रूलर्स हट गए ना रास्ते से, तो इल्तुतमिश के सामने एक और बहुत ही खतरनाक डेंजर आया, एंड दैट वाज नोन एज ख्वारिज़मी Empire. Khwarezmi Empire was one of the most powerful state in Central Asia at that time, and they were trying to enter India through the Indus River, and they marched up to Lahore as well. और अगर आप देखोगे ख्वारिज़मी एम्पायर में एक बहुत ही फेमस इंसान है जिसका नाम है कबाचा. Very famous person, Kabacha. He was also a slave of Qutbuddin Aibak. He declared himself as the ruler of Multan.
उस टाइम पर। ओके, एंड इन्होंने चैलेंज किया डायरेक्टली इल्तुतमिश को। फाइनली इल्तुतमिश वॉज एबल टू रिमूव ऑल हिज एनिमीज। इवन जो कुछ राजपूत रूलर्स बचे थे, फॉर एग्जाम्पल गुजरात में चालुक्यास बचे थे, वहां पर भी इन्होंने अपना झंडा स्टैब्लिश कर दिया। बट एज आई टोल्ड यू दैट इल्तुतमिश वॉज ऑल्सो वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन. So you will see that in 1236 to 39, you will see Razia Sultan, the daughter of Iltutmish, succeeding his throne. He knew that all my sons are incapable of expanding the territories or even managing the territories except for my daughter. And that is why he gave the chance to rule the entire empire to Razia Sultan. In order to assert her claim, Razia had to contend against her brothers also, because her brothers were not happy with this decision. Male dominated society थी. ओके, तो कौन एक्सेप्ट करता रजिया सुल्तान को एज द रूलर? प्लस इट इज सेड दैट रजिया सुल्तान यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक अ मेल so that she could win the trust of the nobles who were not supporting her in the court. But she could rule only for 3 years. ये भी कॉन्स्पिरेसी का ही शिकार हुई, अपने ही भाइयों के हाथों इनका मर्डर हुआ, and she ruled for only 3 years. But once she died, there was a struggle that started between who will become the king and between the Turkish chiefs. तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम स्टैब्लिश किया था, विच इज नोन एज द 40 और चाहलगनी. चाहलगनी कौन थे? 40 टर्किक स्लेव्स थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखा करते थे दिल्ली सल्तनत का. किसके एडवाइस पे? सुल्तान के एडवाइस पे. सुल्तान ऑर्डर दिया करता था एंड दे यूज्ड टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ द सुल्तान. बट नाउ द मोनार्की वाज वीक, so that is why the Turkish chiefs were becoming powerful. And hence we will see after Razia Sultan's death, the Turkish chief and the monarchy, they started fighting with each other. When they started fighting against each other, the entire empire, that is the Iltutmish का जो empire था, वो weak होना शुरू हो गया. Now during all this that is going on in medieval India, एक बहुत ही important event आता है, which is the rise of Mongols. इसको हम भूल नहीं सकते. Because during the time period of 1221 to 1327, the Mongol Empire also tried to invade Indian subcontinent. The rise of Mongols started with the arrival of Genghis Khan, who was the Mongol leader, and he very proudly used to compare himself with God. He attacked the Khwarezmi Empire also, and he also started attacking the Sultanate of Delhi. But because he could not win, that is why इनका मंगोल का जो इन्फ्लुएंस है वो भी धीरे धीरे कम होता चला गया. Even it is said that Iltutmish, who was ruling at Delhi, tried to appease the Mongols so that they stop attacking Indian subcontinent. Ultimately, Iltutmish was able to conquer both Lahore and Multan region, and that is why the Mongols were defeated finally. And Genghis Khan also died in 1227, so the Mongol Empire was divided between his sons, and hence it became weak. ओके, जब मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन होने लगता है तो एम्पायर अपने आप ही कमजोर पड़ जाता है. नाउ वी सी द राइज ऑफ बलबन. 1246 से 87 का टाइम पीरियड में हम देखेंगे बलबन निकल कर आते हैं. अब अगर हम बात करें बलबन की, घियासुद्दीन बलबन की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि द स्ट्रगल बिटवीन मोनार्की एंड द चाहलगानी जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, द स्ट्रगल विच वॉज गोइंग ऑन, दिस स्ट्रगल वॉज पुट टू एन एंड बाय बलबन ओनली. बलबन की अथॉरिटी एकदम इंक्रीज होने लगी बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल tactful policies, and hence we see that the Turkish chiefs, they started becoming weak during the time period of Balban. But because these Turkish chiefs were unhappy because of the rising influence of Ulugh Khan, who was also known as Balban, तो हम देखेंगे that there was a conspiracy which was hatched against Balban in 1253, and hence Balban was replaced by Imauddin Rayyan, who was an Indian Muslim. अब जब इमाउद्दीन रहियान बैठ जाते हैं थ्रोन पर, तो बलबन वेरी नाइसली अग्रीज टू स्टेप असाइड, बट वेरी सीक्रेटली ही वॉज क्रिएटिंग हिज ओन सेट ऑफ आर्मी, एंड ही ऑल्सो हैड कॉन्टैक्ट्स विद मंगोल्स. तो वो चाहते थे मंगोल्स की हेल्प लेकर मैं पंजाब लाहौर का एरिया पूरा अपने काबू में कर लूं. बलबन गॉट रिड ऑफ मेनी एनिमीज. बट होता क्या है कि बलबन की आर्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना जरूरी है. बलबन हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी. मेनी टाइम्स इन प्रीलिम्स दे विल कंफ्यूज यू बाय सेइंग डिसेंट्रलाइज्ड आर्मी. गलत है. सेंट्रलाइज्ड आर्मी हुआ करती थी बलबन की, बिकॉज इट यूज टू डील विद बोथ द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड इट ऑल्सो यूज टू रिपेल मंगोल्स. मंगोल्स की हेल्प तो बलबन ने ली,
but he knew that if I include Mongols into my plans, then they will try to overpower me. That is why, after having a very strong centralized army, he started getting rid of Mongols as well. And finally पंजाब में आकर इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया. He also established military department known as Diwan-e-Arz, and he gave pension to all his army men so that they can be motivated to work for him much more effectively. But ultimately he dies in 1286. वैसे अगर एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है कि हु इज नोन एज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली, इट इज बलबन, गियासुद्दीन बलबन, हु इज नोन एज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड. यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड. अब जब हम बलबन की बात करते हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट बलबन नाइसली, वी हैव स्टडीड अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजीज नाइसली. हमने दीवान ए अर्ज भी पढ़ लिया, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डायनेस्टी विच इज द खलजी डायनेस्टी. देखो, जब हम खलजी डायनेस्टी की बात करते हैं, इसके ऊपर एक मूवी भी आई है तो आपको याद ही होगा, पद्मावती, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट खलजी डायनेस्टी, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बताना चाहती थी. आप प्लीज इसको लिख भी लीजिए. there are two terms. First is known as सिजदा, ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है. सेकंड इज नोन एज पाइबोस. सिजदा का मतलब होता है प्रोस्ट्रेशन, जब आप किसी को नमस्कार करते हो, झुककर आदाब करते हो. ठीक है, अब ये सिजदा और पाइबोस क्या चीज है, लेट अस अंडरस्टैंड. और पाइबोस का मतलब क्या होता है? किसिंग द फीट ऑफ द मोनार्क. किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क. ठीक है, अब ये जो सिस्टम है, ये किसने इंट्रोड्यूस करा है? बलबन ने इंट्रोड्यूस करा है. इसीलिए मैंने बलबन के पास ही इसके बारे में लिखा है, ये पॉइंट याद रखिएगा. ही यूज्ड टू बिलीव इन पेट्रियार्कल डिस्पोटिज्म. His conviction was that only a despot could extract obedience from his subject and ensure the security of state. And that is why the Balban theory of kingship is also coupled with the theory of blood and iron, which paid him good dividends. अपने सारे जो भी राइवल्स थे, एनिमीज थी, उनको हटाने के लिए इन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी क्या की थी? डिवाइस की थी. ठीक है, अब बात आती है खिलजी डायनेस्टी की. देखो, खिलजी डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही ये डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में थी, बट दे वर एक्चुअली टर्किश इन ओरिजिन. प्लीज राइट इट डाउन. ये चीज फैक्ट किसी को पता नहीं होती है. दे वर टर्किश इन ओरिजिन. नाउ हु वाज द फाउंडर? कौन थे इसके फाउंडर खिलजी डायनेस्टी के? यस, अलाउद्दीन खिलजी के ससुर, हु वाज नोन एज जलालुद्दीन खिलजी. ही वाज द फाउंडर and he was 70 years of age when he came to the throne. But he is known as a person who has a very goodwill. He was also famous for his policy of tolerance. हर religion को रिस्पेक्ट करते थे. प्लस बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान थे. He was a very pious Muslim. He used to consider himself as the fighter in the path of God. And he constructed his capital at Kilokri, जहां पर उन्होंने कम से कम 6 years तो रूल किया ही किया था. बट आफ्टर हिम केम अलाउद्दीन खिलजी. अब इनके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं. अलाउद्दीन खिलजी इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस एम्पायर, एंड इट इज सेड दैट ही मर्डर्ड हिज फादर इन लॉ एंड अंकल जलाउद्दीन खिलजी टू क्राउन हिमसेल्फ एज द सुल्तान. अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो मैं यहाँ पर नोट डाउन करने में आपको हेल्प करती हूँ. ठीक है, एक बॉक्स बना लेंगे जिसके अंदर हम ऊपर लिखेंगे खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी. ठीक है, अब इस बॉक्स में एक पॉइंट याद रखना है कि 4 रीजंस हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में काफी राइवल्स निकल कर आए थे, काफी रेबेलियंस हुए थे. व्हाट आर द 4 रीजंस फॉर दैट? फर्स्ट रीजन इज द inefficiency of the spy system that he created. He did not believe in his own spy system, by the way. He was a very you can say his trust was shaken to that extent that he never used to believe in anyone. क्योंकि उन्होंने भी धोखे से अपने ससुर को मारा था ना, तो उनको लोगों पे विश्वास नहीं होता था easily. Then there was a general practice of the use of wine. Then third, social interaction between the nobles was restricted. Why? Because he used to think if nobles or ministers start interacting socially, they will hatch a conspiracy for killing me.
And he used to said that nobles cannot possess wealth. जो सैलरी मिल रही है वही रखो, एक्स्ट्रा वेल्थ आप पोसेस नहीं कर सकते. एंड ही वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स. तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन दी थी जिसका जो इस तरीके से थी, दैट किंगशिप नोज नो किनशिप. दिस वॉज द लाइन गिवन बाय अलाउद्दीन खलजी. He used to separate religion from politics. Okay, and he also took the title of Sikandar A Shani. Sikandar A Shani. This was the title that Alauddin Khalji gave himself. Now इनके बाद क्या आते हैं, मलिक कफूर आते हैं, who was also a general of Alauddin Khalji's army. When we talk about what happened after Khalji dynasty went down, we have the तुगलक डायनेस्टी. अब देखो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर तो हम सबको पता है गाजी मलिक हैं. गाजी मलिक was the founder. He was known as Ghiyasuddin Tughlaq. 1320 में ये थ्रोन पर बैठते हैं. But he rules for very short period of time. After a brief rule, he dies in 1325. And इनके बेटे हैं मोहम्मद तुगलक, who starts ascending the throne. मोहम्मद बिन तुगलक जो है, he was one of the most controversial ruler. बिकॉज इन्होंने ऐसी एम्बिशियस स्कीम निकाले थे जो सारे के सारे फेल हुए थे. कभी दिल्ली से दूसरी जगह कैपिटल स्टैब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पानी की कमी है तो वापस दिल्ली आ रहे हैं. तो इनकी सारी पॉलिसीज ना फेल हुई थी. इवन टॉलरेंस भी इनके टाइम पीरियड में थोड़ा सा कमी था, रिलीजियस टॉलरेंस. ओके, ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू डियोगिर इन द डेक्कन, रीनेम्ड इट एज दौलताबाद, एंड ही बिल्ट अ रोड फ्रॉम दिल्ली टू डियोगिर. डियोगिर तक इन्होंने रोड भी बनाई, बट बिकॉज डियोगिर में वाटर सप्लाई बैड था, ही हैड टू कम बैक टू दिल्ली. एंड दैट इज वाई हुआ क्या कि मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स वाज सीन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. ही ऑल्सो इंक्रीज द टैक्सेस, वाटर टैक्स भी इंक्रीज कर दिया था इन्होंने. तो इनका टाइम पीरियड बहुत इनफेमस है. एंड देन द लास्ट वन इज फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक जो है, after the demise of Muhammad bin Tughlaq, his cousin Firoz Shah Tughlaq became the new king. इन्होंने क्या किया, चैरिटी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किए, स्लेव्स डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किए, इक्तदारी सिस्टम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कहाँ बताया था, यहाँ बताया था, जो इक्तास का सिस्टम है उसको हेरिडेटरी कर दिया. आज आप इक्तदार हो, कल आपका बेटा बनेगा. तो अब मेरिट सिस्टम हटा दिया इन्होंने. अगेन हिज टाइम पीरियड ऑल्सो केम डाउन बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज वर नॉट वेरी वेरी गुड. एंड देन वी हैव द सैयद डायनेस्टी. अब आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास कौन सी डायनेस्टी आएगी, सैयद डायनेस्टी आएगी. सैयद डायनेस्टी रूल्ड फॉर 1414 टू 1451 ओनली. शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है यहाँ पर सैयद डायनेस्टी में, सबसे ज्यादा रूलर्स का. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट the Tughlaq dynasty, after the end of Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty rose to power. Timur defeated the army of Delhi. He appointed Khizr Khan as the ruler, as the governor of Multan. And it is said that Khizr Khan was the founder of Sayyid dynasty. Okay, he defeated Sultan Daulat Khan, he occupied Delhi, he established his Sayyid dynasty. But it is said कि इस डायनेस्टी के जो लास्ट राजा थे जिनका नाम आलम शाह था, he became very incompetent, and because of him the entire dynasty went down. And after the Sayyid dynasty, the last of Delhi Sultanate is Lodi dynasty. ये लास्ट रूलर्स हैं दिल्ली सल्तनत पीरियड के. तो इसमें ना 3 रूलर्स आते हैं बहुत ही फेमस. एक हो जाते हैं बहलूल लोदी, एक है हमारे सिकंदर लोदी, और हमारे तीसरे हैं यहाँ पर इब्राहिम लोदी. इब्राहिम लोदी. These are the 3 rulers. Behlul Lodi was the founder. Then after him, who ascends the throne? The Sikandar Lodi. He was the second ruler. He was also known as Sultan Sikandar Shah. He was a very good administrator, by the way. And then the last ruler of Lodi dynasty is Ibrahim Lodi. And Ibrahim Lodi basically faced several revolts by his officers and nobles. क्योंकि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उतना स्ट्रांग नहीं था, इसी वजह से इनके नोबल्स, इनके मिनिस्टर्स, इनके ऑफिसर्स इनके अगेंस्ट खड़े हुए. And that is how we see the decline of Lodi dynasty as well. So this was the entire medieval history in gist. आपने देखा कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन भी निकल कर आया है. अब हमें करना क्या है आज, मैंने आपको क्लास वर्क दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे. आपको पहले तो वो क्लास वर्क सॉल्व करना है और मुझे अपने स्कोर्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में. और मैंने PYQ प्रैक्टिस करने का लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगेन कमेंट सेक्शन में भी पिन किया है. आपको वो PYQ प्रैक्टिस करके मुझे अपने स्कोर्स बताने हैं.
अगर आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि आज आपने क्लास बहुत अच्छे से रिवाइज कर ली है. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. डू फिनिश योर होमवर्क, वरना फिर क्लास का तो फायदा ही नहीं हुआ, रिवीजन का फायदा ही नहीं हुआ अगर आपने होमवर्क नहीं किया, है ना. एंड डू रिवाइज दिस क्लास, because this is going to be a really game changer when it comes to your prelims preparation. Thank you so much everyone for participating in the class. Take care, stay healthy.